السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ان چیزوں پر جس کا اللہ تعالی نے خود تذکرہ کیا. نمبر دو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا تعارف کروا دیا، ان سب پر بھی ایمان لایا جائے گا. اس حوالے سے ہم بات پڑھ رہے تھے قرآن پاک سے چند آیات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش فرمائی وہ ہم نے پڑھ لی تھیں. اس کے بعد احادیث بھی انہوں نے پیش کی، وہ بھی پڑھ لی. اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الی امثال هذه الاحادیث، اس جیسی دوسری احادیث، التي وہ جو یخبر فیہا خبر دیتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب بھی اپنے رب کے متعلق، بما یخبر بھی جس کے ساتھ بھی وہ اس کے متعلق خبر دیتے ہیں. ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے متعلق جس کے ساتھ بھی خبر دیتے ہیں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ، پس بے شک فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، ایسا فرقہ جو نجات پانے والا ہے. اس پہ ہم پہلے سبق میں اس پہ کچھ کلام کر چکے تھے. اہل السنہ والجماعہ، جو اہل السنہ والجماعہ ہے، یؤمنون بذلک، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. کیسے؟ کما یؤمنون، جس طرح وہ ایمان رکھتے ہیں، بما ان چیزوں پر اخبر اللہ بھی فی کتابی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں اپنے متعلق خبر دی. کیسے؟ من غیر تحریف، بغیر کسی تحریف تعطیل کے، ومن غیر تکییف ولا تمثیل، اور بغیر کسی کیفیت بیان کیے اور بغیر کسی مثال کے. تو تحریف، تعطیل، تشبیہ، تکییف کے بغیر جو اہل ایمان ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متعلق اپنی کتاب میں جو چیزیں بیان فرما دی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم آگے چلتے ہیں. آگے الفصل الرابع ہے وسطیت اہل سنت والجماعہ بین فرق الامہ، امت کے فرقوں کے درمیان اہل السنہ والجماعہ کی وسطیت کا بیان. یہ وسطیت جو ہے نا، اس کے دو معنی آپ کریں گے. ایک معنی وسطیت کا ہوتا ہے اعتدال، اعتدال، اور دوسرا معنی اس کا کیا جاتا ہے افضلیت. اہل السنہ والجماعہ جو ہیں، وسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے افضل، سب سے فضیلت والے. اور دوسرے نمبر پر اس کا مطلب ہوتا ہے اعتدال، یعنی ایک فرقہ جو ہے وہ غلو کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے، افراد کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور دوسرا تفرید کا کر رہا ہے. تو اہل السنہ والجماعہ وسط ہیں. اور العقیدہ الواسطیہ پہ بھی ہم نے شاید بات کی تھی کہ ویسے تو واسط شہر سے وہ آدمی آیا تھا اس لیے اس کا نام الواسطیہ ہے، اور دوسرا اس کو یہی وسط سے بھی اس کو واسطیہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے. تو بل ہم الوسط، بلکہ وہ وسط ہیں، راہ اعتدال والے ہیں، فی فرق الامہ، امت کے تمام گروہوں میں. کما جیسا کہ ان الامت، امت ہی الوسط، امت وسط ہے، فی الامم، امتوں میں. قرآن میں ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا ہے. تو یہ جو ہے نا الفصل الرابع، جو اصول ہے وسطیت کا، یہ وسطیت جو راہ اعتدال اختیار کیے ہوئے اہل السنہ والجماعہ، یہ کن کن کاموں میں ہے؟ تو انہوں نے یہاں الاصل الاول ذکر کی ہے، اسماء و صفات کے باب میں بھی یہ وسطیت کے قائل ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے فعال کے بارے میں بھی، وعید کے بارے میں بھی، اور چوتھے نمبر پر ایمان، دین کے جو نام ہیں ان میں بھی، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی. یہ پانچ اصول ہیں جن اصولوں میں اہل سنہ والجماعہ بقیہ جو فرقے ہیں ان کے درمیان ہے. یعنی بقیہ جو فرق ہیں کچھ بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، کچھ بہت پیچھے ہیں، تو اہل سنہ والجماعہ سب کے درمیان ہیں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں خیر الاموری اوسطھا،
सबसे बेहतर मामला क्या होता है? जो वसत वाला हो, राह एतदाल हो। तो आप सादा लफ्जों में समझ लें, कोई भी खाना पीना भी है, इसमें भी एतदाल ही अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा खा लेना भी बीमारियों का बायस बन जाता है, और बिल्कुल ही ना खाना भी मौत का सबब बन जाता है। तो एतदाल क्या है कि आदमी को जितनी उसके जिस्म को जरूरत है उतना खाए। तो ये तो खाने की मिसाल है। आप दुनिया के हर मामले में देख लें, एतदाल की जरूरत होती है। तो अकीदे जो है, अकीदे का मामला, यहाँ भी एतदाल की जरूरत है। अला कुल्ली हाल, पहला असल क्या है? फहुम वसतुन, तो ये एतदाल वाले हैं, मोतदल हैं, फी बाब सिफात इल्लाही सुब्हानहु व तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफात के मुतालिक। बाब का मतलब होता है बारे में, मसले में। तो सिफात के मसले में ये उम्मत वसत हैं। जो अहलुस सुन्नह वल जमा हैं, ये वसत हैं। किन के दरमियान? बैन अहल तातील अल जहमिया व बैन अहल तमसील अल मुशब्बिहा। तातील करने वाले जो जहमिया हैं उनके दरमियान, और तमसील वाले जो मुशब्बिहा हैं उनके दरमियान। तो मौलिफ रहमहुल्लाह ने यहाँ दो नजरियात बयान किए, जहमिया और मुशब्बिहा। जहमिया, आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये इनकार करते हैं और कुल्ली इनकार करते हैं अल्लाह ताला के, यानी सिफात, अल्लाह ताला की जितनी अस्माओ सिफात सबका क्या करते हैं? ये इनकार करते हैं। इससे पहले हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि ये बिल्कुल ही अल्लाह तबारक व तआला की सिफात वगैरह का इनकार करते हैं। अब एक तरफ तो ये है कि कुल्ली इनकार, और दूसरी तरफ जो मुशब्बिह हैं कहते हैं नहीं नहीं, इनकार नहीं है, सारे अस्माओ सिफात को मानना है, लेकिन तमसील के साथ, मिसालों के साथ। अल्लाह का हाथ है, हाँ, कैसे? जैसे हाथ हमारा है। अल्लाह के कान है, हाँ है, कैसे? जैसे कि हमारे हैं। अलियाज़ु बिल्लाह। तो जहमिया की तौहीद क्या है? कि अल्लाह ताला की सारी सारी सिफात और सारे अस्मा का इनकार। और मुशब्बिहा की तौहीद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के सारे अस्मा, सारी सिफात पर ईमान, लेकिन बंदों के मुशाबे करार देकर। ये दोनों जो तौहीद है, ये बिल्कुल गलत और बातिल है। असल तौहीद क्या है? अस्मा और सिफात अल्लाह तबारक व तआला के हैं। कैसे हैं? जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह दूसरा मसला है अफ़आलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के जो अफ़आल हैं, अब वहुम वसतुन, अहलुस सुन्नह वल जमाआ, फिरका नाजिया मंसूरा, ये वसत हैं, राह इत्तिदाल पर हैं अल्लाह तबारक व तआला के अफ़आल के बारे में। किन के दरमियान? कदरिया और जबरिया के दरमियान। कदरिया कौन है? कदरिया क्या कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, हाँ, उससे पहले ना हम जबरिया को समझते हैं। जबरिया ये कहते हैं कि बंदा जो है, बंदा मजबूर महज है। बंदा क्या है? मजबूर महज है। अ, इसकी एक मिसाल देकर वो बात कहते हैं, मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पे ये दरख्त है। अब दरख्त के पत्ते हैं, जाहिर है हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे, पत्तों का अपना तो कोई कसूर नहीं। इसी तरह एक आदमी बीमार हुआ, तो बीमारी की वजह से उसका हाथ, जो मिसाल फालिज हो गया एक हाथ पे, अब वो हाथ उठाया नहीं जा रहा। हाथ का कसूर नहीं है, किसका कसूर है? फालिज का, बीमारी का। इसी तरह अब एक बंदा अगर झूठ बोल रहा है, तो भाई वो मजबूर है। वो क्या है? मजबूर है, क्योंकि तकदीर में उसके लिए लिखा हुआ है। और एक यानी सच बोलता है, उसका मामला भी यही है। यानी ये क्या कहते हैं कि बंदा वो मजबूर महज है, मतलब जो तकदीर में उसके लिए लिख दिया गया है, बंदे पर लाजिम है कि वही करे, बंदा और कुछ कर ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह जो कदरिया है, कदरिया का कहना क्या है कि इंसान खुद अपनी तकदीर बनाता है। इंसान, मिसाल के तौर पे इंसान ने अभी अभी ये अभी क्या टाइम हुआ है, मिसाल 8:45 हुए हैं, तो 8:45 पर एक बंदे ने क्या बोला? झूठ बोला। अब अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह को नहीं पता था कि इसने झूठ बोलना है। अल्लाह को नहीं पता था। बंदे ने 8:45 पर, 8:44 पर झूठ बोला,
تو अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में आया और उसकी तकदीर में आया कि बंदे ने झूठ बोल लिया है। यानी जबरिया क्या कहते हैं, पहले से सारा तकदीर में लिखा हुआ है, आदमी ने वही करना है, बंदे का कोई इख्तियार नहीं, तो भी बंदे को गुनाह सजा भी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ने खुद ही उसको बुरा बना दिया या बुरा है। कदरिया क्या कहते हैं, नहीं, बंदा ही सब कुछ करता है, बंदा सारे काम करता है, फिर अल्लाह के इल्म में आता है कि बंदे ने ये किया है, पहले अल्लाह को कुछ भी पता नहीं है। अब देखें दोनों नजरियात क्या हैं, गलत है। इस पर मुझे एक वाकया याद आ गया। वो बस बाज बातें सही होती हैं, कुछ बनी होती हैं, इस तरह ये वाकया मारूफ है, हकीकत है कि नहीं अल्लाह आलम, लेकिन आपको इससे बात इंशाल्लाह समझ आएगी। एक आदमी था, उसने कहा कि नहीं, तकदीर सब कुछ है, तकदीर में जो लिखा हो, यही बात अभी जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा कहता नहीं, तकदीर नहीं, असल चीज मेहनत होती है। वही जो कदरिया वाली बात है, यानी सेम यही बात, इसी से हम इस बात को समझ रहे हैं। अब वो दोनों का झगड़ा हुआ, बिल आखिर वो अदालत में उनको जाना पड़ा, जज ने जो है उनको समझाया बड़ा, लेकिन वो नहीं, वो कहता नहीं तकदीर असल है, वो कहता नहीं मेहनत असल है। कहा अच्छा इनको एक कमरे में बंद कर दो, कमरे में बंद कर दिया गया। और खाना जो है, रोटी वगैरह, वो छत के साथ लटका दी गई और दरवाजा बंद कर दिया गया, इन दोनों को अंदर ऐसे छोड़ दिया। अब जो कहता था कि तकदीर असल है, मुकद्दर में हुआ तो मिलेगा, ना हुआ तो नहीं मिलना, खा आदमी जितनी मर्जी मेहनत करे। तो वो एक किनारे में बैठ गया, जाहिर है भूख लगेगी, जो कुछ भी होगा तकदीर में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ना सही मर जाएंगे, तकदीर में मरना हुआ तो मरना सही। अच्छा, वो जो दूसरा था, जो कहता था कि नहीं मेहनत असल है, तकदीर कुछ नहीं होती, हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं तो अल्लाह को पता चलता है। वो क्या करने लगा, मेहनत करने लगा वो छत से खाना उतारने में, बिल आखिर वो नतीजे पर पहुंच गया और उसने खाना ऊपर से उतार लिया। और एक किनारे में बैठा और दूसरे कहता, वेख्या ही, मैं आपको कहता नहीं था कि मेहनत असल है। खाना शुरू कर दिया, आधा खाना खाया, फिर सोचा यार वो जो मेरा साथी है वो भी तो मेरे साथ ही बंद है ना अंदर, तो उसको भी भूख लगी होगी, ये खाना मैं उसको दे देता हूँ। तो मैंने खा लिया। अच्छा, वो खाना उसको दे दिया, वो कहता वो देखिए ही, मैंने कहा था ना तकदीर असल है, तो खाना मुझे मिल गया, तकदीर में चूंकि मेरे लिए लिखा था तो मुझे मिल गया। जी। तो इससे बात क्या समझ आई, बात ये समझ आई कि दोनों चीजें ही असल हैं। अपना जो दोनों चीजें ही हैं एक एतबार से। यानी असल अल्लाह तबारक व ताला का इल्म है, तकदीर है, लेकिन तकदीर के साथ मेहनत भी है, तकदीर के साथ तकदीर भी है, तकदीर के साथ मेहनत भी है। अब सिर्फ अकेली तकदीर तो नहीं थी, जाहिर है दूसरे ने मेहनत की है, खाना मेहनत के साथ ही ऊपर से उतारा ना नीचे, खाना मेहनत के साथ ही ऊपर से नीचे, तो जज ने फिर ये फैसला किया कि भाई दोनों बातें असल है, आपको दोनों को समझ आ गई है। तो इसी तरह हम इस बात को समझेंगे, जो अकीदा अहलुस सुन्ना वल जमा है वो ये है, अल्लाह तबारक व ताला का इल्म कामिल है, अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह को पता है। और जो ये अल्लाह ताला का फेल है, जी, तो जो बंदा जो है जो काम करता है वो अल्लाह ताला के इल्म में पहले से होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बंदे को इख्तियार भी दिया होता है, बंदे की मेहनत का दखल भी होता है। तो बाद लोग नहीं, अक्सर लोग दीन के मामलात में तो तकदीर का बहाना बना, जी लिखा होगा तो पढ़ लेंगे नमाज, ना लिखा होगा तो ना पढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए बड़ी मिसालें पेश की जा सकती हैं, सादा सी बात उन्हें कहें कि आप खाना फिर ना खाया करें, जी अपनी जगह पर बैठे रहा करें, तो तकदीर में लिखा हुआ तो खाना खुद ब खुद तैयार होगा, और खुद ब खुद बनकर बर्तनों में पैक होकर आपके सामने दस्तरखान लगेगा, सारा खाना खुद ब खुद आ जाएगा। जब आ जाए तो हाथ ना आगे बढ़ाना खाने के लिए, क्योंकि आपके पेट में जाना है ना, उसने तकदीर में लिखा हुआ है, तो वो खाना खुद ब खुद ही नीचे पहुंचे, खुद आपने हाथ हिलाना नहीं है, मुंह भी आपने नहीं खोलना, क्योंकि आप हाथ हिलाएंगे ही मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप मुंह खोलेंगे ये भी आप बिलफेल एक काम कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इला है कि वो खाना खुद ब खुद पेट में चला जाए। इसलिए अहलुस सुन्ना वल जमा इन नजरियात के भी क्या है, बिल्कुल वसत में है, जो भी हमने पेश किया। तीसरा मसला क्या है जी, वईद, अल्लाह तबारक व ताला का सजा वगैरह देना। तो वईद वाला जो मसला है, इसमें अहलुस सुन्ना वल जमा जो है वो उम्मत अकीदा अहलुस सुन्ना वल जमा वसत है, राह इत्तिदाल है, बैनल मुर्जियती व बैनल वईदियती मिनल कदरियती वगैरिहिम। मुर्जिया और कदरिया,
ये जो है ना कदरी, इनके आगे है ना कई इनके अपने फिरके हैं, उनमें से एक वईदिया है। सारे कदरियों का ये नजरिया नहीं। तो अभी यहाँ हम समझेंगे कदरिया वईदिया एक ही है। वईदिया कदरिया इनके साथ खारजिया भी मिला लें, ये सारे एक ही हैं। तो मुर्जिया का नजरिया क्या है कि बंदा गुनाह कर ले, उसका कलिमा काफी है। गुनाह जो है वो ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुर्जिया का क्या कहना है कि आदमी ईमान ले आया है ना, अब जितने मर्जी वो गुनाह करे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि काफिर लोग जो हैं, वो चूंकि काफिर हैं, कुफर की हालत में हैं, वो जितनी इताआत मर्जी करें, खाना खिलाएं लोगों को, जो कुछ मर्जी करें, उनको फायदा नहीं होगा। क्यों? वो काफिर हैं। इसी तरह जो मोमिन बन चुका है, वो पक्का मोमिन बन गया हुआ है। अब वो जितने भी गुनाह करता फिरे, अल्लाह उनको उसको सजा नहीं देगा। क्यों? वो है मोमिन। अच्छा, एक तरफ तो ये मुर्जिया है, और दूसरी तरफ जो है ये वईदिया कदरिया है। इनका कहना क्या है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला नेक काम करने वाले को बदला देता है ना, उसको सवाब देता है, इसी तरह अल्लाह ताला पर फर्ज है कि हर गुनाह करने वाले को उसका क्या दे? सजा दे। अब दोनों के नजरियात बातिल हैं। वईदियों का मुर्जिया का बातिल कैसे है कि अल्लाह तबारक व ताला सजा देता है, कई दलाइल हैं इस पे। आप सादा सी ये बात यही देख लें, हुदूद का निफाज जो है, नबी अलैहि सलाम के दौर में बाद साहबा से चोरी हुई, हाथ काटा आपने। कुछ से जिना हुआ, आपने रजम किया उनको। कुछ ने तोहमत लगाई, आपने उनको सजा दी, हद कज़फ उन पर कायम की। क्यों की फिर ये सब? साहबा इकराम से बढ़कर कोई मोमिन हो सकता है हमारी इस उम्मत में? इसलिए मुर्जिया का नजरिया क्या है? बिल्कुल बातिल है। इसी तरह वईदी कदरी जो है खारजी वगैरह, इनका नजरिया क्या कि अल्लाह ताला पर फर्ज है, जिस तरह अल्लाह ताला नेकी करने वाले को उसका बदला देता है, इसी तरह अल्लाह पे फर्ज है कि गुनाह करने वाले को उसकी सजा भी दे। ये भी गलत है। अल्लाह तबारक व तआला माफ भी तो कर देता है। अल्लाह ताला माफ भी तो कर देता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। इस आयत मुबारक के सरी खिलाफ है इनका जो नजरिया है। तो अहलुस सुन्नह वल जमा इसमें भी वसत हैं। वो क्या कहते हैं कि जो आदमी कबीरा गुनाह करे, उसके ईमान में नक्स आ जाता है, उसका मामला अल्लाह ताला के स्पुर्द है। अल्लाह ताला जब वो मरेगा आदमी, अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ करे, चाहे तो उसकी सजा उसको देकर फिर उसको जन्नत में दाखिल करे। इसी तरह जो चौथा उसूल है वो क्या है? वफी बाबिल ईमान वद्दीन, अस्माउल ईमान वद्दीन। जी, ईमान का नाम और दीन का नाम। मिसाल के तौर पे फला आदमी मोमिन है, फला आदमी काफिर है, फला आदमी मुसलमान है, फला आदमी फासिक है। ये जो अल्फाज हैं, ये कब आएंगे? तो अहलुस सुन्ना वल जमा राह इत्तिदाल में है। किन नजरियात के? बैन अल हरूरियती वल मुअतजिलती व बैन अल मुर्जियती वल जहमिया। एक तरफ जो है हरूरिया और मुअतजिला का नजरिया है, और दूसरी तरफ मुर्जिया और जहमिया का नजरिया है। हरूरिया कौन है, ये पहले हम इस पे जान चुके हैं। ये इराक का शहर था ना हरूरा, तो असल में यहाँ से ये लोग ज्यादा निकले थे। वो आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास आई ना, तो कहने लगी कि जो हैज की हालत में होती है खातून, हैज से जब साफ हो जाएगी तो वो कज़ाई देगी, नमाज की भी कज़ाई देगी, रोजे की भी कज़ाई देगी। तो अम्मी जान ने कहा हरूरिया तो नंती, हरूरिया हो तुम? नबी अलैहि इस्लाम के दौर में हम हाइजा होती थी, रोजों की कज़ा हम देती थी, नमाज की नहीं देती थी। तो ये बड़े सख्त लोग होते हैं खवारिज। तो ये हैं खारजी ही, लेकिन उस इलाके की तरफ इनकी निस्बत इसलिए कि वहां से इनका आगाज हुआ था। इसी तरह मोतजिला भी हम पढ़ चुके हैं। ये वासिल बिन आता जो है हसन बसरी रहमहुल्लाह की मजलिस से अलग हो गया था। अलग होना एतजाल है और इसी को मोतजिला कहा गया। तो हरूरिया और मोतजिला का नजरिया क्या है? हरूरिया और मोतजिला कहते हैं कि जो आदमी गुनाह करता है, जिसने आदमी ने कबीरा गुनाह किया ना, तो कबीरा गुनाह करने के साथ वो दायरा इस्लाम से निकल गया।
इनके चले यहाँ इसको देख लें। दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, असल में इनके यहाँ ना एक और बात समझें। हमारे यहाँ जो अपना ईमान है ना, इसके तीन अरकान हैं। दिल से तस्दीक, जुबान से इकरार और अमल बिल जवारे, ऐसा ही है ना। लेकिन जो हरूरिया और मोतजिला हैं, खवारिज वगैरह, इनके यहाँ चार चीजें होती हैं। ये चौथी चीज क्या शामिल करते हैं, को बता सकते हैं? जी, कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब है। ये भी इनके यहाँ क्या है, ईमान का लाजिमी हिस्सा है। इसी वजह से जो आदमी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हुआ, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, चोरी की, जिना किया, डाका डाला, वगैरह वगैरह, अब इनके यहाँ वो क्या हो गया, दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। फिर आगे ये अलग मसला है, जो हरूरिया हैं, खवारिज, इनके यहाँ दायरा इस्लाम से खारिज भी हुआ हरूरिया के यहाँ, और वो काफिर भी हो गया। यानी एक कत्ल करने के साथ बंदा क्या हो गया, इनके यहाँ काफिर हो गया। और जो मोतजिला है वो कहते हैं नहीं, दायरा इस्लाम से तो वो निकल चुका है, लेकिन काफिर नहीं हुआ, दायरा कुफर में वो दाखिल नहीं हुआ, बल्कि वो बैन बैन है। मंजिला बैनल मंजिलतैन, एक तरफ कुफर है, एक तरफ इस्लाम है, ये दोनों के दरमियान में है। और भी इनकी आगे कुछ तफसील है। तो गोया इनका कहना क्या है कि जिसने एक गुनाह किया, उस गुनाह के साथ बंदा क्या हो गया, दायरा इस्लाम से निकल गया, दायरा इस्लाम से निकल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जो मुर्जिया और जहमिया हैं, इनके मुतालिक हम पहले भी जान चुके हैं कि ये कबीरा गुनाह का जो मुर्तकिब वगैरह हो, वो इनके यहाँ क्या है, अ, वो मुआफ ही है इनके यहाँ। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना इनका मुर्जिया का, तो वही मुर्जिया और जाहमिया का यहाँ नजरिया एक ही है कि आदमी कलिमा पढ़ के जितने मर्जी गुनाह वगैरह करता रहे, वो छोटे गुनाह हो बड़े गुनाह हो, उस पर मुसलमान का लफ्ज बोला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं, अहलुस सुन्नह वल जमात का नजरिया क्या है, जो आदमी कसरत से गुनाह करेगा वो फिसक होगा, गुनाह होगा। और अगर इसी पर वो मर गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हाँ ये मामला है, अल्लाह ताला चाहे उसको माफ करे, चाहे तो उसको जहन्नम में सजा दे, और सजा भुगत लेने के बाद वो आदमी जन्नत में आ जाए। इसी तरह पांचवा उसूल सहाबा किराम के बारे में है। तो अहलुस सुन्नह वल जमा वसत में है, किन के, रवाफिद के और खवारिज के। एक तरफ रवाफिद हैं। रवाफिद कौन है, जो अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु और बाद खास अहले बैत को इनकी शान में क्या करते हैं, गुलूब करते हैं। हत्ता कि इतने बदबख्त लोग इनमें पाए जाते हैं जो क्या कहते हैं कि वही अली रदी अल्लाह अन्हु की तरफ आनी थी, और ये भूल कर जिब्रील जो है, या अलियादु बिल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चालाकी की वजह से, जी, ये नबूवत उनके पास चलेगी, असली अली के पास आनी थी। और कुछ इससे भी, ये तो नबूवत पे डाका है, कुछ अल्लाह की किबरियाई पर डाका माल डालते हैं। ये आपने सुना होगा, पिछले सालों में एक बदबख्त और वो उठा था, उसने क्या कहा कि चलें उसकी बात, वो क्या अब नकल करनी है, छोड़ें। वो अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ उसकी बात थी, जी, अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ उसकी बात थी, और वो अली रजी अल्लाह अन्हु को मुश्किल कुशा मान रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, रवाफिद ने अली को नबी से भी बढ़ा दिया और रब तबारक व तआला से भी बढ़ा दिया। और दूसरी तरफ खवारिज हैं। इन खवारिज ने क्या किया, सहाबा किराम की शान में तनकीस की है इन्होंने। इन्होंने सारे सहाबा किराम पर ही कुफर का फतवा दिया कि ये काफिर लोग हो गए हैं, माँ सिवाय फुला 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 के, बकिया सारे सहाबा क्या हैं, काफिर हैं। तो अहलु सुन्ना वल जमा इन सब के भी क्या हैं, वसत में हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से खताएं वगैरह जो कुछ भी हुई हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रिजा का सर्टिफिकेट दिया है। और ये आप जानते हैं कि रिजा का सर्टिफिकेट जन्नत में जाकर अहले इस्लाम को मिलेगा। लेकिन सहाबा इतनी अच्छी और पाकबाज हस्तियां थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर ये रिजा का जो सर्टिफिकेट है वो अता कर दिया। तो हमारा नजरिया इस हवाले से क्या है
جو جس صحابی کا مقام تھا وہ اس کو دیا جائے، اس مقام سے بڑھایا بھی نہ جائے اور اس مقام سے کم بھی نہ کیا جائے۔ یہ آگے چل کر بھی اس پر کچھ بات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہم آگے چلتے ہیں، الفصل الخامس ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر ہے، علی علی عرشی، اپنی عرش کے اوپر ہے اور بہت بلند ہے۔ وقد دخل، اور تحقیق داخل ہے، فیما، اس میں جو ذکرنا ہو ہم نے ذکر کیا، من الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ الایمان، ایمان لانا، بما، ان چیزوں پر، اخبر اللہ بھی فی کتابی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متعلق اپنے کتاب میں بتایا۔ اسی طرح وتواتر عن رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ اجمع علیہ سلف الامہ، اور جن پر امت کے سلف صالحین صحابہ کرام وغیرہ کا اجماع ہے۔ یہ تین باتیں یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آ جائے، اور سلف صالحین صحابہ کرام وغیرہ کی طرف سے بات آ جائے، یہ تین اصول ہیں ہمارے۔ جی، کیا کیا چیزیں؟ من انہ سبحانہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوق سماواتی ہی، اپنے آسمانوں سے اوپر ہے، اعلی عرش، اپنے عرش پر، علی اعلی خلقی، اپنے مخلوق سے جدا ہے، اوپر ہے، وہ سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معہم، ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں، یعلم، جانتا ہے، ما ہم عاملون، جو اس کے بندے کر رہے ہیں، کما جمع ذالک، جس طرح کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے، فی قولہ، اپنے فرمان میں، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر بھی ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہے، بندوں کے جو افعال وغیرہ ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ پھر یہ جو ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ، اس آیت مبارکہ میں کہتے ہیں وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ وَهُوَ مَعَكُمْ کا یہ مطلب نہیں ہے أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ، کہ وہ مخلوق کے ساتھ گلا ملا ہے، مخلوق کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو اختلاط ہے نا، اختلاط یہ تو دنیا دار لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاط کا نظریہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص ہے۔ بھائی بات سنیں، ایک ہے کہ آپ کسی گھر کی نگرانی کرتے ہیں، تو آپ کرسی اپنی جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس گھر کے چوراہے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک یہاں یہاں دیکھتے جاتے ہیں، تو نگرانی کر رہے ہیں آپ اس گھر کے اندر موجود ہیں، ساری نگرانی کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہی مان لیا جائے تو پھر نگرانی کیسی؟ یہ تو مخلوق بھی کر رہی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ اتنا اوپر ہو کر، اتنا بلند ہو کر، اس کے باوجود بھی ایک ایک مخلوق کی ایک ایک حرکت سے وہ کیا ہے؟ باخبر۔ کمال تو یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معیت ہے ہمارے ساتھ، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ معیت اختلاط والی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں ملا ہوا ہے، اور نہ یہ حلول والی ہے، نہ یہ حلول والی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ہے۔ عبادت اتنی کرو کہ اللہ خود تمہارے اندر ہی آ جائے۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ فإن هذا لا توجب اللغة، کیونکہ لغت اس معنی کی تائید نہیں کرتی، یہ معیت کا جو معنی اختلاط کے ساتھ ہے نا، اس کی لغت تائید نہیں کرتی ہے۔ وہ ہوا، اور اسی طرح یہ خلاف اس کے خلاف ہے، ما اجمع علیہ سلف الامہ، جس پر امت کے سلف نے کیا کر لیا؟ اتفاق کر لیا۔ تو سلف صالحین کا جس پر اتفاق ہے، یہ اس کے خلاف بھی ہے، ایک تو لغت بھی اس کی تائید نہیں کر رہی، اور دوسرا یہ کیا ہے؟ سلف صالحین کے نظریے کے بھی برخلاف ہے۔ اسی طرح وخلاف ما فطر اللہ علیہ الخلق، اسی طرح یہ اس کے بھی برخلاف ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ کہتے ہیں بل القمر، بلکہ چاند ہی دیکھ لو، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، من اصغر مخلوقات ہی، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی مخلوقات میں سے ہے، مخلوقات میں سب سے چھوٹی چیزوں میں سے ہے یہ، وہ موضوع فی السماء، یہ رکھا گیا ہے کہاں؟ نصب کیا گیا ہے آسمان میں، وہ مع المسافر، مسافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وغیر المسافر، اور غیر مسافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے،
ऐनमा कान, वो जहां भी हो। तो अल्लाह तो इस पे हम पहले बात कर चुके थे। अल्लाह ताला अर्श पर है, मान लिया। अल्लाह ताला हमारे साथ है, मान लिया। तो देखें, छोटी सी अल्लाह ताला की मखलूक के सारे लोगों के साथ है वो। आप कहते हैं चांद मेरे साथ है, जबकि वो अपनी जगह पर है। तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कोई ऐसी बात क्यों नहीं सोची जा सकती। इसी तरह अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वह हुआ सुब्हानहू फौकल अर्श, और अल्लाह ताला अर्श पर है। रकीबुन अला खल्की, अपनी मखलूक पर वो निगरान है। मुहैमिनुन अलैहिम, उन पर वो मुहाफिज है। मुत्तलिउन इलैहिम, उन पर मुत्तले है। ये जो इत्तिला है ये कई तरीकों की है। बंदों के जो अफ़आल हैं, जो काम बंदे कर रहे हैं, उन पर भी अल्लाह ताला मुत्तले है। इसी तरह बंदों के जो अक़वाल हैं, जो कुछ वो कह रहे हैं, उन पर भी अल्लाह ताला मुत्तले है। इसी तरह बंदे के जो अहवाल हैं, हालतें हैं, वो खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तो ये तीनों तरह की चीजें, ये सारी की सारी चीजों पर अल्लाह तबारक व तआला क्या है, मुत्तले है। तो इला गैरि ज़ालिका, इसके अलावा मिन मानी रुबूबियत ही, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत में से जो है, जो उसकी रुबूबियत में से है। वकुल्लु हादल कलाम अल्लज़ी ज़करहुल्लाह, और ये सारी बात जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, मिन अन्नहु फौकल अर्शी, कि वो अर्श के ऊपर भी है, वन्नहु माना, और वो हमारे साथ भी है। हक़्क़ुन अला हक़ीक़तिही, ये सब अपनी हकीकत पर मबनी है। ला यहताजु इला तहरीफिन, जो किसी भी तहरीफ का मोहताज नहीं है। वलाकिन, लेकिन युसानु, बचाया जाएगा, अन जुनून कादिबा, झूठे गुमानों से। युसान का मतलब है महफूज रखा जाएगा, लेकिन महफूज रखा जाएगा जो ऐसे गुमान है जो क्या है, झूठे हैं। आगे इन्होंने यहाँ थोड़ी इबारत इस नुस्खे में हज़फ है। दूसरा नुस्खा जो है उसके अंदर ये इबारत मौजूद है। जुनून काज़िबा कौन से हैं? मिसलु, जैसे अन युज़न्ना, गुमान किया जाए, अन्न ज़ाहिर क़ौली, कि अल्लाह ताला का जो फरमान है उसका जाहिर बता रहा है, फिस समा का, अन्ना समा तुज़िल्लुहु, ये फी, इस पे हम बात कर चुके थे ना। फी बमाना में लेते हैं ये लोग। फी यानी हकीकी माना में उस पर लेते हैं। इसमें हमने कहा था कि जो हुरूफ़े जारा होते हैं इनमें तनाउब पाया जाता है, एक दूसरे का माना देते हैं। तो इस पे हमने बात की थी। तो क्या कहते हैं, अन्ना समा, आसमान, तुदिल्लुहु, अल्लाह ताला को साया किए हुए है। औ तुकिल्लुहु, या आसमान ने अल्लाह ताला को उठा रखा है। तो वहादा बातिल, ये बातिल है। बिइजमाई अहलिल इल्मी वल ईमान, अहले इल्म और अहले ईमान के इत्तेफाक के साथ। फ़इन्नल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला कद वसिअ कुर्सी समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमान और जमीन पर वसी है। वह हुवा युमसिकु समावाति वल अर्द, और वो आसमान और जमीन को रोके हुए है, अंतजूला, के वो गिरें। इसी तरह वयुमसिकु समा, उसने आसमान को थामा हुआ है, अंतका अल अर्द, के जमीन पर गिर पड़े, इल्ला बिइज़्नि, मगर उसकी इजाजत के साथ। वमिन आयाती, उसकी निशानियों में से, अन तक़ूम समा वल अर्द बिअमरी, कि आसमान जमीन उसके हुक्म से क्या है, कायम है। इसके आगे जो है अल सादिस है, जिसमें इस बात का तज़किया, वक़द दख़ल फ़ी ज़ालिक, और तहकीक दाखिल है इसमें, अल ईमान, ईमान रखना, बिअन्नहु क़रीब मिन ख़ल्क़ी, कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक के करीब है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमा दिया, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तो अल्लाह ताला ने खुद बताया कि मैं बंदे को, बताओ मैं बंदे के क्या हूँ, करीब हूँ। इसी तरह नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, इन्नल्लज़ी तदऊनहु, जिसे तुम पुकार रहे हो, अक़रबु इला अहदिकुम, वो तुम में से किसी एक के ज्यादा करीब है, मिन उनुक़ि राहिलतिही, उसकी सवारी की गर्दन से भी। पीछे हम इस पे पढ़ चुके हैं। इसी तरह वमा दुकिरा फिल किताब व सुन्ना, और जो भी किताब व सुन्नत में जिक्र किया गया, मिन कुर्बिही, अल्लाह ताला के करीब होने से, व मइयतिही, और उसके साथ होने से, ला युनाफी, ये मनाफी नहीं है, उसके बरखिलाफ नहीं है। किसके? मिन उलुव्विही, अल्लाह ताला के बुलंद होने, व फौकियतिही, और उसके ऊपर होने। ये कुर्ब और मइयत जो है, उलुव और फौकियत के मनाफी नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। फी जमीई नुऊतिही, नुऊत नात की जमा है, मुराद सिफात, अल्लाह ताला की किसी सिफत में भी कोई अल्लाह का हम मिसल है ही नहीं। वह हुआ अलीयुन, और अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है, फी दुनुव्विही, अपने करीब होने में। इसी तरह करीबुन, अल्लाह करीब है, फी उलुव्विही, अपने बुलंद होने में। अल्लाहु अकबर कबीरा।
हम्म। जी, इसी तरह अल्लाह ताला पर ईमान, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान। इसमें पहली फसल क्या है? ईमान रखना कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है, मखलूक नहीं है ये। और दूसरी फसल क्या है? ईमान रखना कि सारे जो मोमिन हैं ये क़यामत वाले दिन अपने रब को देखेंगे। तो पहली फसल क्या है? कि कुरान कलामुल्लाह है, नाजिल शुदा है, मखलूक नहीं है ये, अल्लाह की सिफत है ये, क्योंकि कलाम है ये। वमिनल ईमान बिल्लाही वमिनल ईमान बिही व कुतुबी, और अल्लाह पर ईमान और उसकी किताबों पर ईमान से, अल्लाह पर ईमान के हवाले से काफी हद तक बात मुकम्मल हो चुकी है, अब किताबों पे ईमान की बात आ रही है। अल ईमान, ईमान लाना, बि अन्नल कुरान कलामुल्लाह, कि कुरान अल्लाह की कलाम है, मुनज्जल, ये नाजिल शुदा है, अल्लाह ने इसको नाजिल किया, ऊपर से नीचे उतारा है इसको। गैर मखलूक, मखलूक नहीं है ये मखलूक नहीं है, जिस तरह दीगर मखलूकात हैं ये वैसे मखलूक नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की। इस पे जो है ना, हमारे इस्लाफ ने जाने दी हैं, कुर्बानियां पेश की हैं, कुरान को मखलूक नहीं मानते थे, कुरान अल्लाह की कलाम ही है। हाँ, हम जो कुरान पढ़ते हैं, हमारे अल्फाज जो हैं, हमारा ये पढ़ना मखलूक है क्योंकि हम मखलूक हैं, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है वो अल्लाह का कलाम है, वो मखलूक नहीं है। मिनहु बदा व इलैहि याऊद, ये अल्लाह ताला की तरफ से इसका आगाज हुआ था और अल्लाह ताला की तरफ ये लौट जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से इसका आगाज हुआ था, अल्लाह से पहले ये किसी की कलाम नहीं रही है। अल्लाह ताला ने ये पढ़ा, कलाम की, तो अल्लाह ताला की ये कलाम है, और अल्लाह ताला की तरफ ही ये लौट जाएगा। इसके मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लौट जाएगा, इसके मुतालिक जो है ना, बाज हसन सनद की रिवायत आती हैं जिसमें इस बात का तज़किरा है कि जो कुरान है, कुर्ब क़यामत एक ऐसी रात आएगी कि ये जो कुरान पाक जो है, ये सारे कसाबी, कुछ वक़्त की कमी है, मैं सिर्फ नंबर लिख देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। शुअबुल ईमान, इमाम बैहकी की किताब है, 2028 नंबर इसका नंबर है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरह इब्न माजा में 4048 नंबर है, इस पर भी आप कुछ देख सकते हैं ये। तो रिवायत हसन सनद के साथ मौजूद है। एक रात ऐसी आएगी कि कुरान के जो हरूफ हैं, ये कुरान के सफ़हात से अल्लाह ताला इनको मिटा देगा, अपनी अपनी तरफ उठा लेगा, और सुबह उठेंगे और लोग ये मुसहफ खोलेंगे और अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान पाक के सफ़हात सफ़ेद पाएंगे, उस पे कलिमात नहीं लिखे हुए होंगे, अल्लाह ने ये अपनी कलाम इसको वापस उठा लिया होगा। अल्लाह ताला इस वक्त से हम सबको महफूज फरमाए। अभी कुरान हमारे पास मौजूद है, इसकी कदर करनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, और इसके जो तकाजे हैं उसको पूरा करना चाहिए। उस मंजर से डरना चाहिए जब अल्लाह ताला अपनी ये सारी कलाम ही उठा लेगा, क्या खैर बाकी रह जाएगी फिर ऐसे लोगों में? बदबख्त लोग होंगे ये, कि अल्लाह ताला अपनी कलाम का इनके यहाँ मौजूद होना भी बर्दाश्त नहीं करेगा और सारी कलाम अपनी तरफ उठा लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वन अल्लाह तकल्लम बिही हकीकतन, और अल्लाह ताला ने हकीकी तौर पर ये कलाम की है। ये कलाम वाकई अल्लाह की है, किसी और की नहीं है। ये नहीं किसी और की कलाम है तो अल्लाह ने किसी और की कलाम आगे नकल की, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की ही ये कलाम है। आज हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। नक्तफी बिहादल कदर, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हम पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।